Those who have not joined, they'll suffer because I'm not going to repeat it. And this knowledge of digital electronics is going to be used again and again in this paper and going forward also, whichever exam you give. If you want to put a message on the group, you can do that they should join. I'm going to start. So let me share this screen. So today is a special lecture on digital electronics. Basically, we want to know what is, latch and all those things that we will study. So I'll just, give you the brief of two basic type of circuits. You know that one is combinational logic, another is sequential logic circuit. So uh, the digital circuits are divided into two parts. One is combinational circuit and the other is sequential circuit. In some of the books, it is written combinational logic circuit. In some of the books, it is a sequential logic circuit. In some books, it is given only sequential circuit. Both are okay. So, so what is the difference between these two circuits? The difference is in combinational circuit, the moment you change the input, your output changes, right? The moment you change the input, your output changes. That is the combination circuit. So simple Boolean functions, half adder, full adder, they are the example of combination circuit. You know, multiplexer. They're all the examples of combination circuit. In sequential circuits work as a memory element. So the next stage of output depends on its present state. So only input is not sufficient to decide what or changes will be noticed at the output. It is input plus the previous state of the output. Both has to be added. So if you make a block diagram of, let's say, combinational circuit, then you have input and then you have output. But in the case of sequential circuit, you have output, you have input, and at the same time you have, you know present state that is also fed as an input. So simply by changing the input, you may get a change in output, but output, it is dependent not only on the input, but also it depends on the previous value or the present value of the output. So that is what the difference between combinational and sequential circuits. So sequential circuits basically works as a memory element. So because it stores certain data. Okay. So that is the difference. So now after this, let us come to a basic circuit, what we are interested in. Yeah. So I have
one NAND gate, and then I have another NAND gate. Let's say this is G1, this is G2, this is input A1, this is input A2, this is Q, this is QR. Now I have a connection like this, and then I have a connection like this. Okay. So if I write the truth table of this, so if I write, let's say truth table here, A1, A2, this is Q. So let the initially, अच्छा, NAND गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? NAND गेट की प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी एक इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट 1 होगा, राइट? या कोई भी एक इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट 0 होगा. सो हम एक इनपुट से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा, राइट? सो व्हाट विल हैपन, so let's say this is it is stored at q is equal to 1. so q bar से कॉम्प्लीमेंट होता है 0. ये इसका आउटपुट है यहाँ पर, और ये जो सेकेंड होता है दैट इज q bar. so when q is equal to 1 and q bar is equal to 0, हम ये कहते हैं कि एक स्टेट में ये आके लॉक हो गया. दिस इज लॉक नाउ. ओके. अब अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो ये चेंज नहीं होगा. इफ द सर्किट इज स्टेज 1, it continues to remain in that state, and similarly in zero state it continues to remain in zero state. ये प्रॉपर्टी जब तक आप यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करेंगे ये लॉक रहेगा बिल्कुल. A1 A2 पर जब तक आप कुछ चेंज नहीं करेंगे दिस विल होल्ड दैट स्टेट. जो भी आपका इनपुट हो, अगर Q इज इक्वल टू 1 है और Q बार इज इक्वल टू 0 है, और अगर आपने इसको होल्ड कर लिया, सो नाउ दिस विल बी इन लॉक स्टेट. मीन्स उसने उस एक बिट इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर लिया. आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, आउटपुट उसने लॉक कर लिया. इसको हम कहते हैं लैचिंग हो गई इसकी. ओके. इसको हम कहते हैं लैचिंग हो गई. दिस इज कॉल्ड लैच, RS लैच. ये RS फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है. दिस इज कॉल्ड लैच. ओके. तो ये होता है लैच. अच्छा, फ्लिप फ्लॉप, ये RS फ्लिप फ्लॉप भी है, बट देन लैच का एक एडवांस वर्जन ही फ्लिप फ्लॉप होता है. मिसाल के तौर पर अगर आप इस पर क्लॉक लगा दें, इस RS को अगर आप क्लॉक के साथ जोड़ दें, सो लेट अस फर्स्ट डू दिस RS फ्लिप फ्लॉप ट्रुथ टेबल. हमने NAND गेट से बनाया है. सो आप इसमें सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए हमने लिया 1 और 0. A1 1 है और A2 0 है. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, ये 1 है तो हमने कहा था कि जैसे कोई भी इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट इसका 0 हो जाएगा, राइट? A2 यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, 0 है. देन व्हाट विल हैपन, ये 0 यहाँ पर आया, फिर क्या हुआ, दिस 0 एंड 0, दिस विल मेक दिस 1. ओके. अब ये 1 यहाँ पर पहुंचा. सो 1 और A1 ऑलरेडी 1 है. सो 1 and 1 दिस इक्वल टू, दिस विल मेक इट 0, और फिर 0 and 0 दिस विल मेक इट 0. आउटपुट 0. Sorry, 0 and 0 this will make it 1. I'm sorry. So this will make it 1. तो आपका Q क्या हुआ, Q हो गया 0, और आउटपुट क्या हुआ, आई मीन Q बार क्या हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया. तो ये कंडीशन क्या हुई, ये आपकी रीसेट कंडीशन आ गई. रीसेट का मतलब जब Q आउटपुट 0 हो जाए तो इसको हम रीसेट कहते हैं.
और जब Q आउटपुट 1 हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेट हो गया। अब ये इस पोजीशन पर होल्ड रहेगा, इट विल रिटेन एट दिस पोजीशन। सो द मोमेंट इट विल रिटेन एट दिस पोजीशन, आप इसको कहेंगे कि साहब ये लैच है हमारा, ये लैच हो गया, आई मीन दिस इज नाउ फिक्स्ड। So it will not change automatically unless you change the input, and that input depends on the previous output also. So let us change that. अब देखिए, अब हम चेंज कर रहे हैं। अब हमने अगला इनपुट कर दिया 1 1, तो यहाँ भी यहाँ भी हमने कर दिया 1। ओके, तो अगर ये 1 है तो ये हो गया 0, ठीक, ये हो गया 0। कोई भी इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट इसका, ओके सर एंड गेट में सर सिर्फ 1 1 सर कंडीशन ऐसा नहीं होता सर। ओके 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 सर ओके इन ओके। सो अभी आपने क्या किया, इस सीक्वेंस के बाद आपने चेंज कर दिया 1, राइट, 0 को 1 कर दिया, और ये भी 1 था ही, तो यहाँ पर ये 1 आपने किया, यहाँ से ये 1 आ रहा है, सो 1 into 1 इज 1, और उसका ये 0 हो गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, 0 into 1 इज 0, ये 1 हो गया। सो इट मीन्स ये स्टेट आपकी रिटेन रहेगी, दिस स्टेट विल रिटेन एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब आप इसको 0 1 कर दीजिए, अब आप इसको 0 कर दिए, पहले 1 0 था, फिर आपने 1 1 किया, अब आप इसको 0 कर दीजिए, तो नाउ यू मेक दिस एज 0, तो 0 into 1 इज 0, और फिर इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट आ जाएगा 1, इसका आउटपुट आ गया 1, तो यहाँ पर आ गया 1, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, this is 1, so 1 into 1, this is 0, now this is 0, 0 into 0 is 1, 0 into 0 is 1, and 1 into 1 is 0, so now this is lock again, it is latched, right? So 0 1 पर आपका ये क्या हो गया, ये सेट हो गया 1, okay? उसके बाद फिर आप यहाँ पर 1 1 कीजिए, now again आप A1 को आप A1 को 1 करिए, so 1 into 0 is 0, so this is 1, and then again 1 into 1 is 1, this is 0, so 0, so now this is again locked. अब आपका आउटपुट क्या हुआ, what is your output, again this is 1, right? The point I want to highlight is, देखिए जब यहाँ 1 1 आपने किया तो आउटपुट 0 आ गया, और जब यहाँ 1 1 आपने किया तो आउटपुट 1 आया, दोनों इनपुट तो सेम है, फिर आउटपुट क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रीवियस स्टेट। ये जो प्रीवियस स्टेट है, इसके पहले ये 0 था, इसके पहले ये 1 था, तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस स्टेट एज वेल। सो ओनली इनपुट चेंज करने से आउटपुट चेंज नहीं होगा, रादर इट विल डिपेंड ऑन द प्रीवियस स्टेट एज वेल। तो दोनों चीजों को लेकर फिर आउटपुट आपका चेंज होगा, दैट विल बी द फाइनल वैल्यू। तो ये जो होल्ड, ये जो कंडीशन जो ये एक यहाँ पर इसने होल्ड कर लिया, फिर आपने चेंज किया तभी ये चेंज हुआ, फिर आपने यहाँ पर चेंज किया तभी, आई मीन दिस इज अगेन होल्ड, ये चेंज हुआ जब आपने चेंज किया, इसको हम कहते हैं कि एक बिट की मेमोरी इसने अपने अंदर स्टोर कर ली, इसको हम कहते हैं लैच। दिस सीक्वेंशियल सर्किट इज कॉल्ड लैच, और ये बेसिक्स है फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट। तो ये जो लैचिंग बार बार हमारे पीएलसी में आएगी, इसका मतलब आप ये समझिए कि ये ऐसी कोई लॉजिक वहां पर होगी जो हमारे मेमोरी स्टेट को लॉक कर लेगी। तो अगर हम उसको रीसेट करना चाहते हैं, देन आई हैव टू मेक अनदर कॉन्टैक्टर फॉर इट, सो दैट मेक इट रीसेट। वो हम डिस्कस करेंगे, तो अभी ये तो मैं आपको फंडामेंटल क्लियर कर रहा था। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट यहाँ Yes. पर?
अच्छा, Yes, अब sir. इसमें देखिए, हमने ये फ्लिप फ्लॉप रियलाइज किया नैंड गेट के साथ. सेम फ्लिप फ्लॉप कैन बी रियलाइज विद नॉर गेट ऑल्सो. तो जब नॉर गेट के साथ आप करेंगे तो आपकी ट्रुथ टेबल चेंज हो जाएगी. ओके, द ट्रुथ टेबल विल बी चेंज. फिर उसमें क्या होगा, जो आप सेट को क्यू से जोड़ रहे हैं, रीसेट विल बी इक्वल टू क्यू. ओके, जो इनपुट का ये अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर सेइंग दिस पॉइंट एट सेट एंड दिस पॉइंट एज रीसेट. ओके, अगर मैं इसको दोबारा से कंप्लीट ड्रा करूं, A1 A2 Q Q bar 1 0 0 1, then 1 1 0 1, then 0 1 1 0, then 1 1 1 0. Okay. So here in this case, that's the meaning of set and reset. Set जो टर्मिनल आपने Q से कनेक्ट किया हुआ है और रीसेट जो Q बार से कनेक्ट किया हुआ है. बट इन द केस ऑफ NOR gate, when you connect this with NOR gate, if you have this connection, so this value is reset and this is set and this is Q and Q bar. That's the difference. Okay. That's the difference. एक मिनट. हेलो. Hello, good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास. So this is how it works. So इसके ट्रुथ टेबल आपको पता है. I mean, I don't have to repeat, but let me write this. So you have S, you have R, you have Q, Q bar. So if I have 1 0 0 0, then 0 1, then I have 0 0 again, then 1 1. 1 1 is undefined state. So 1 0. एक ही टर्मिनल है Sorry. सर. रीसेट में एक ही टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा क्या चीज? सर. रीसेट में जो सिंगल टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा क्यू बार. हाँ, sorry. It will go here. Yes. You're right. Yeah, that's it. So 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0. तो ये अनडिफाइंड स्टेट है. अगर दोनों 0 0 आ रहा है आपका ट्रुथ टेबल में, या दोनों 1 1 आ रहा है, Q और Q बार की दोनों वैल्यू एक नहीं हो सकती है. दे विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. और अगर ऐसा आ रहा है तो वो अनडिफाइंड स्टेट है, उसको नहीं माना जाएगा. राइट. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है RS लैच का. सो फ्लिप फ्लॉप और लैच पे क्या डिफरेंस है? फ्लिप फ्लॉप और लैच पे ये डिफरेंस है कि फ्लिप फ्लॉप पे फिर हम इसको क्लॉक से कंट्रोल करते हैं. तो ये जो सर्किट में अभी आपको शुरू में, यस हियर इट इज, ये है लैच सर्किट. इफ यू सी दिस इज अ लैच सर्किट, राइट. और ये आपका कंट्रोल सर्किट है और ये आपने क्लॉक लगाया है. तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये क्लॉक्ड फ्लिप फ्लॉप है. कहीं कहीं लैच को भी फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, बिकॉज ऑपरेशन वो वही करता है जो लैच करता है, बट देन इट इज नॉट सिंक्रोनाइज विद एनी इवेंट. मिसाल के सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि आप जो है वो कब आप आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं. तो दैट यू सिंक्रोनाइज विद एनी क्लॉक. ठीक है. अब ये क्लॉक पल्स है, इस पर इस ट्रिगर्ड है.
इस क्लॉक की एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेट्स से 20 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो हर अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर पे आप ट्रिगर कर रहे हैं तो 20 मेगाहर्ट्ज का अलग टाइम स्केल होगा, यानी टाइम पीरियड। अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज पे कर रहे हैं तो टाइम पीरियड अलग होगा। सो द टाइमिंग एट विच द आउटपुट विल चेंज, दैट विल चेंज इफ यू सिंक्रोनाइज विद एनी ऑफ द इवेंट। अगर आप सिंक्रोनाइज नहीं कर रहे हैं तो आप जब चेंज करेंगे मैनुअली हो जाएगा वो प्रीसेट एंड सेट वैल्यू। अब जब आप चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा, राइट। तो दैट इज वाई सिंक्रोनाइजेशन अगर आप कर देंगे लैच को तो वो फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ओके, इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर। ओके, अब आते हैं टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। आप लोग पूछे थे टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। सो टाइमिंग डायग्राम हम कहते हैं, हमने एक क्लॉक बनाई, of certain frequency, this is clock। अब क्लॉक में दो तरीके से ट्रिगरिंग हो सकती है। हाँ, लैच में और फ्लिप फ्लॉप पे एक और डिफरेंस है कि लैच जो है वो, अच्छा मैं अभी बाद में बताऊंगा इसको, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये क्लॉक है, इसको कहते हैं, ये है पॉजिटिव एज और ये है निगेटिव एज। तो फ्लिप फ्लॉप पे जो ट्रिगरिंग होगी, ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि आउटपुट किस स्टेट पे चेंज होगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन आपने कैसे डिफाइन कर रखा है। मिसाल के तौर पर अगर आपका ये सिंबल है, दिस इज योर आर, दिस इज एस एंड दिस इज योर क्लॉक, दिस इज आर, दिस इज एक्स, दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू बार। अब यहाँ पर अगर आपने बीच में कोई जीरो नहीं बना हुआ है, यहाँ पर जैसे यहाँ हमने जीरो बना दिया इसके बीच में, इफ आई मेड ए जीरो, इसका मतलब ये निगेटिव ट्रिगर पर काम करेगा। यानी जब 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 हमारी क्लॉक पल्सेस डाउन होंगी ये ट्रिगरिंग, तो ये एससीआर सॉरी आरएस फ्लिप फ्लॉप अपनी पोजीशन आउटपुट, यानी इसकी आउटपुट चेंज, जो स्टेट है वो चेंज होने की कोशिश करेगा। आई मीन देन ओनली द ट्रांजिशन विल टुक प्लेस। ओके, और अगर ये जीरो आपने नहीं बनाया है तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, यहाँ पर चेंजेस होंगे। जब भी क्लॉक आपकी जीरो से वन जाएगी देन ओनली द आउटपुट विल चेंज। और अगर वन से जीरो पर आएगी तो उसको कहते हैं निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो दोनों तरीके से होता है, इट डिपेंड्स कि आपने कैसे डिफाइन किया हुआ है अपने सीक्वेंशियल सर्किट को। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। अब ये तो सबसे पहले क्लॉक बन गया। अब उसके बाद लेट्स से यू मेक वन मोर सिग्नल, लेट्स से आपने आर को कुछ दिया ऐसे, समथिंग लाइक दिस, फिर आपने, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ डायग्राम, आई मीन इट इज नॉट एग्जैक्ट, सो जस्ट वांटेड टू, लेट्स से आपने क्यू को यहाँ चेंज किया, ऐसे चेंज किया, सो आपका सॉरी ये एस हो गया, तो आपका आउटपुट क्यू जो है देन अगर आपने निगेटिव ट्रिगर किया है, सो लेट्स से इट इज हियर, फिर यहाँ रहा, फिर ये जीरो हो गया, फिर यहाँ समथिंग लाइक दिस। तो हर स्टेट का जो आपका सीक्वेंशियल सर्किट है उसको आप इस तरीके से टाइमिंग के साथ अगर आप शो करेंगे, इसको हम कहते हैं टाइमिंग डायग्राम। दिस इज कॉल्ड टाइमिंग डायग्राम। इस टाइमिंग डायग्राम से आप गेस कर सकते हैं कि कब हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, हो क्या रहा है एक्चुअली उसके अंदर, क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है, एवरीथिंग यू कैन डिफाइन हियर। इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट किताबों में ये डायग्राम्स दिए रहते हैं। ये डायग्राम क्या है? दीज आर टाइमिंग डायग्राम्स। सो दिस टाइमिंग डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये दैट इज कॉल्ड ईच ट्रिगरिंग। इसी को ईच ट्रिगरिंग कहते हैं। ईच ट्रिगरिंग का मतलब ये है कि जब either you define as positive edge triggered or negative edge triggered। पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब यह है कि ये चेंजेस तभी होंगे आउटपुट में जब आपका क्लॉक जीरो से वन जा रहा है। निगेटिव एज ट्रिगर का मतलब यह है कि चेंजेस तभी होगा जब क्लॉक वन से जीरो आ रहा है, राइट, दैट इज द निगेटिव एज ट्रिगर। अब आते हैं डिफरेंस पे कि फ्लिप फ्लॉप और लैच में एक और डिफरेंस क्या है। फ्लिप फ्लॉप जो है ये ट्रिगरिंग करेगा इस ट्रिगर पे, 0 to 1 जा रहा है उसी के दौरान ये ऑपरेशन करेगा, राइट। आई मीन देयर विल नॉट बी एनी चेंज हियर
और हियर और हियर, यहाँ पर कोई चेंज फ्लिप फ्लॉप में नहीं होगा. देयर विल नॉट बी एनी चेंज ड्यूरिंग व्हेन इट इज स्टेबल. ये 0 पर है या 1 है तब फ्लिप फ्लॉप चेंज नहीं करेगा अपने स्टेट को. काम तो करेगा, जो स्टेट है उसको होल्ड करके रखेगा, बट the moment it will go either from 0 to 1 or 1 to 0, then only it will change depending on how you have defined it in the circuit. Okay, so that is called is triggering. एक होता है लेवल ट्रिगरिंग. लेवल ट्रिगरिंग का मतलब ये है, ये 0 पर ही चेंज होगा, ये 1 पे चेंज होगा, ये 0 पे चेंज होगा. दैट इज कॉल्ड लेवल ट्रिगरिंग. लैच जो है वो लेवल ट्रिगरिंग पर काम करता है. लैच वर्क्स ऑन लेवल ट्रिगरिंग. Flip flop works on is triggering. So that's another difference between latch and flip flop. Flip flop का बिल्डिंग ब्लॉक लैच ही है, बट अगर आप ये सिंक्रोनाइजेशन हटा दें, क्लॉक पल्स को अगर आप हटा दें, तो देन इट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट. इट इज एन इंडिपेंडेंट यूनिट लाइक दिस. ओके, तो जब भी आप मैनुअली A1 A2 को जब भी आप चेंज करेंगे तो आउटपुट चेंज होगा. देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन. आप जब चाहे मैनुअली चेंज कर सकते हैं, कोई इस पर सीक्वेंसिंग नहीं है. आप I mean, there is no link with any control circuit, so that is free device. That's a basic building element of flip flop. ये latch है. अब आपने इसको synchronize कर दिया clock से, और there will be many big circuits depending on your operation. तो उस हिसाब से ये complexity बढ़ती जाएगी. So that is called flip flop. या इसी flip flop को जोड़ के काउंटर बनता है. 4-bit काउंटर, रिपल काउंटर बनता है, रिंग काउंटर बनता है, वो सब आपने पढ़ा होगा उसमें. तो एक फ्लिप फ्लॉप या एक लैच 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है. इट स्टोर्स 1 बिट मेमोरी. तो अगर आपको 8 बिट, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर में आप पढ़ रहे होंगे, 8 बिट का रजिस्टर है. सो बेसिकली 8 बिट का रजिस्टर क्या है, उस पर 8 फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है सीरीज में. ओके, so that is 8 flip flops are connected in series. तो वो 8 में मिलके 8 बिट हो गया, राइट. 16 बिट है तो 16 हो गया, 32 बिट है तो 32 हो गया. दैट्स द साइज ऑफ मेमोरी, और अगर 64 बिट है तो साइज ऑफ मेमोरी 64 flip flops are connected. So that is how the basic memory element is this flip flop, how it stores the data. Okay. अब इस flip flop पे बहुत सारी टेक्निक्स आ गई. अब ये गेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि गेट जो है आप कैसे रियलाइज करते हैं. डिजिटल सर्किट में आप लोगों ने सीमॉस टेक्नोलॉजी पढ़ी थी. सीमॉस, टीटीएल, आरटीएल, ईटीएल, ये सब पढ़ा गया था आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 5th यूनिट में. क्यों भाई? नो सर, टीटीएल आरटीएल तो नहीं पढ़ा गया. सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस टेक्नोलॉजी. नो सर. अच्छा जी. अब ये जो आप सिंबल देख रहे हैं गेट का, इस गेट के अंदर एक सर्किट होती है. अब इस सर्किट को कई तरीके से बनाया जाता है. ट्रांजिस्टर लॉजिक से बनाया जाता था. अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है वो सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस टेक्नोलॉजी से चल रही है. सो क्यों कॉम्प्लीमेंट्री मॉस आया, पॉपुलर क्यों हुआ? इसलिए कि हमें इस गेट का जो ऑपरेशन ये कर रहा है, ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम. इट विल नॉट हैपन इन 0 टाइम. सो जो टाइमिंग है, जो इसका ऑपरेशन है, जो चेंज कर रहा है स्टेट, कि कितना फास्ट होता है. इट विल नॉट बी 0, बट सीमॉस पे ये बहुत फास्ट हो जाता है. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड. Whereas in the case of TTL या ECL, जो पहले गेट आते थे, उसमें वो ऑर्डर काफी बड़ा था. आई मीन इट वाज ऑफ द मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड था. बट सीमॉस ने आके लॉसेस भी कम किए और स्पीड बढ़ा दिया आपके ऑपरेशन की. एंड एवरीबडी वांट्स ए फास्ट ऑपरेशन. मिसाल के तौर पर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी पिक नहीं हो रही, आप एक्सीलेटर दबा रहे हैं, सो इट इज नॉट हैपनिंग फास्ट. उसके अंदर की जो सिस्टम है वो उसका टाइम कांस्टेंट है, वो लेगा. उसी तरीके से डिजिटल सर्किट्स पे भी इनका अपना टाइम कांस्टेंट होता है. अगर आपने फास्ट ऐसे सर्किट्स, ऐसे एलिमेंट्स नहीं लगाए जो फास्टर मूव करे, सो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द फास्ट रिजल्ट. इसलिए इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री मास लगाया जाता है. उससे इन गेट्स को रियलाइज करते हैं. तो जब भी ये ट्रिगरिंग और ऑपरेशन होता है, सो
it gives the output. It changes very fast, and that is very very important. Okay. तो बहरहाल ये सारी मैंने चीजें आप लोगों को बताई ताकि आपका ब्रशअप हो जाए. बट मेन थिंग इज व्हाट इज द लैच एंड हाउ इट वर्क्स. इसके अलावा और कुछ आपको समझना है कुछ और? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क. Anyone is having any doubt in today's lecture on digital electronics में और कुछ आपको समझना है? Excuse me, sir. हाँ बोलिए. Sir, if latch and flip-flops are sufficient for storing data, sir, then why we go to registers? Because latch and flip-flops are more convenient and easy to use. तो रजिस्टर फ्लिप Why we फ्लॉप, prefer register? रजिस्टर जो है फ्लिप फ्लॉप से ही तो बनता है. अगर आपको ये तो 1 बिट डेटा स्टोर करेगा. अगर आपको एट ए टाइम 8 बिट डेटा स्टोर करना है या 4 बिट डेटा स्टोर करना है तो कैसे करेंगे आप? यू नीड 4 फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये तो करता है मगर ये 1 बिट कर सकता है. अगर आपका डेटा साइज बड़ा है तो फिर आप कैसे स्टोर करेंगे उसको? तो रजिस्टर फ्लिप फ्लॉप से ही बनता है. यही मैंने बताया अभी आपको. Okay, sir. राइट. ये आप पढ़ेंगे उसमें माइक्रो प्रोसेसर में जो आप पेपर पढ़ रहे हैं. सनी इधर. Okay, so I guess by now you have brush up your fundamentals of your digital electronic circuit, and this is what the latch is. Latch is an electronic device which changes its output immediately based on the applied input. It is used to store either 1 or 0 at any specified time. It consists only two inputs, name set and reset, and two outputs which are complement to each other. And flip-flop is a basic digital memory circuit which stores 1 bit of information. Flip-flops are the fundamental blocks of most sequential circuit. It is also known as bistable multi-vibrator or a binary or 1-bit memory. Flip-flops are used as memory element in sequential circuit. The output is obtained in sequential circuit from combinational circuit or flip-flop or both. The state of flip-flop changes at active state of clock pulses and remains unaffected when the clock pulse is not active. Okay. Not active का मतलब अगर स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है. In particular, clock flip-flops serve as memory element in synchronous sequential circuit, and unclocked flip-flops like latches. See, this is what. अगर ये unclocked नहीं है तो इसको latch कहते हैं. Serve as memory element in asynchronous sequential circuits. So this is how it is defined. The major difference between flip-flop and latch is that flip-flop is an edge-triggered diode type, जो मैंने भी आपको बताया कि 0 to 1 और 1 to 0 पे. While the latch is a level trigger type, the output of latch changes whenever the input changes. I mean, 0 होगा या 1 होगा. Okay. This is the difference. तो लैच और बफर में क्या डिफरेंस होता है सर? बफर कहते हैं आप जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को कुछ टाइम के लिए डिले करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं बफर स्टेट पे आपने कर दिया. यानी अभी उसको आप पढ़ेंगे. सर बफर में तो सर इंसुलेशन का मतलब है सर, इनपुट और आउटपुट परफेक्टली इंसुलेटेड हो जाते हैं. नहीं. बफर का मतलब ये है कि आपने स्टेट्स को होल्ड कर दिया, कुछ देर के लिए आपका ऑपरेशन डिले कर दिया है, आपने डिले प्रोवाइड कर दिया वहां पर. दैट इज कॉल्ड बफर. एक कमांड होता है उसमें, अभी आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ेंगे, एक कमांड होता है उसमें कि आपने उसको बफर स्टेट में कर दिया. आप चाहते हैं कि 2 मिलीसेकंड तक ये स्टेट ऐसी ही रहे, तो आप एक कमांड इसलिए कर देते हैं कि 2 मिलीसेकंड तक वो उसको होल्ड करके रखता है. दैट इज कॉल्ड बफर. बफर का मतलब ये है कि आपने जो स्टेट है उसको होल्ड करके रखना है. तो ये लैच को यूज करके भी आप बफर स्टेट मेंटेन कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू सी एग्जैक्टली किस एप्लीकेशन में आप उसको यूज करें. दैट इज कॉल्ड बफर स्टेट. समझ में आया? यस सर. फ्लिप-फ्लॉप बहुत सस्ते अवेलेबल हैं. आप मार्केट में, यहाँ दिल्ली में लाजपत राय मार्केट है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं या कहीं से भी आप खरीद सकते हैं. यू कैन रियलाइज योर सर्किट. ओनली थिंग इज वी नीड पावर सप्लाई. उसको 15 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए होती है, एंड ऑल्सो यू नीड साथ में आपको
जो और सर्किट्स है कॉम्बिनेशन है, कहाँ उसको हुकअप करेंगे आप, ब्रेड बोर्ड चाहिए तो आप करके बहुत सारे सर्किट्स आप अपने घर पे बना सकते हैं, और कोई बहुत कॉस्टली नहीं है। इवन जो आपने पढ़ा है उसमें रिंग काउंटर एंड ऑल, जो काउंटर्स आपने पढ़े हैं उसमें, उसको आप अपने घर पे बना सकते हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट। इवन यू नो लाइक किड्स आर डूइंग इट, आप अपने घर के जो आपके छोटे हैं उनके लिए आप बना सकते हैं, एंड देन यू विल आल्सो गेट कॉन्फिडेंस दैट यस व्हाट आई हैव रेड आई एम एबल टू implement it practically. So try doing such creative things at your home. Lockdown, अब आपके शहर में, मुझे नहीं मालूम कि आपके शहर में और वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल हैं कि नहीं है, बट इन दिल्ली yes it is available. Unfortunately things are under lockdown, otherwise लैब में आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते, फ्लिप फ्लॉप की IC भी आप चेक कर रहे होते, और फ्लिप फ्लॉप आप गेट से रियलाइज कर रहे होते। ये ट्रुथ टेबल जो फ्लिप फ्लॉप की आपने पढ़ी है तो वो आप रियलाइज कर रहे होते, बट आपका सेमेस्टर वैसे निकल गया, अनफॉर्चुनेट। सो नो मोर क्वेश्चंस? No more questions, then I'll take attendance and we'll start tomorrow the Latch PLC. Okay. So Ranjan, roll call. Chitranjan Kumar, Emil, Mohammad Ashraf Faizi. Present, sir. Arbab. Present, sir. Okay. Then Sabiha Khatun. Present, sir. Okay. Shahid Gilani. Present, sir. Okay. Sayyid Mashood Shafi.